Assalamu alaikum. Right. So, what we need to do today is from the linear FEA part, we have to just talk about one more thing, which is this isoparametric elements. और उसके बाद हम अपने linear वाले part को close कर देंगे. And then we'll start talking about non-linear effects, जिसमें geometry और materials वगैरह के non-linear effect की बात करेंगे. And that will be mostly जिसमें हम theory को सिर्फ समझ के and we'll just do things in the software directly. अच्छा, अभी जो topic है, this is probably the most important topic as far as implementation of FEN, मतलब computers के अंदर implementation के लिए this is the most important topic that is there. ठीक, और क्यों है वो we'll talk about that. This was the point जिस पे आके हमारा FEA बहुत ज़्यादा efficient होना शुरू हो गया once this thing developed, because before that things were very computation intensive, and we'll see what changed when we develop these isoparametric elements. Isoparametric elements are, they can be anything. They can be, this is just a type of formulation for any type of physics. So it can be 1D, 2D, 3D, thermal systems, any type of system you have, you can develop isoparametric elements for them. ठीक है, तो हमारा main purpose इसमें जो है वो इनको समझना है. Again हम एक numerical देख लेंगे, the approach, how the approach is, but the main idea here is to understand what is going on, because इसके समझे बगैर हम लोग कभी भी जो सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे. तो द मेन पॉइंट्स हियर इज टू अंडरस्टैंड एंड टू बी एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स के एट द एंड के हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ व्हाट इज द नीड फॉर दीज, एंड जो हम के लिए इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ये उधर जाके हेल्प करेगा हमें. ठीक है, तो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम्स फॉर डिटर्मिनिंग स्टिफनेस एज वेल एज बॉडी एंड सरफेस फोर्सेस. ठीक, अब हमारा के मैट्रिक्स जो होता है, द के मैट्रिक्स इज दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट. और इस मैट्रिक्स के अंदर वी हैव बी ट्रांसपोज डी बी, एंड वी आर टेकिंग अ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस एंटायर थिंग. एंड so far what we have had is कि हमने जो systems assume किए थे, they had linear shape functions. तो जब हम अपने displacement को differentiate करके strain निकालने की कोशिश करते हैं, तो we always had a constant B matrix because we were taking our shape functions which were linear. So dn by dx turned out to be a constant term. So we really so far did not need to carry out any integration. हमने matrix multiply करना था, which will still be needed, but we did not need any integration sort of thing so far, which was easy for us so far. But in reality things won't be this easy. If for example this B matrix is linear in terms of x, then you have a linear part here and a linear part here, and this multiplying together becomes a quadratic term. Again, when you are integrating this thing, you have, if this thing is let's say a element like this which has 9 nodes in 2 dimensions, 2 degrees of freedom per node, so 18 by 18 matrix here, right? You have a large number of terms, all of them are a function of x and y. You have to carry out the integration of every element, and you have to do this for every element, because हमें पता है कि B और B matrix जो form हो रहा था हमारा constant strain triangle के लिए भी, it was actually not just अब वो ऐसा नहीं था कि जैसे हमने पहले बीम और ट्रस का निकाला था कि वो एक मैट्रिक्स निकाल गया उसके अंदर से वैल्यू प्लग इन करनी है. वी हैड टू एक्चुअली डिराइव इट एवरी सिंगल टाइम बिकॉज देयर वर टर्म्स कमिंग अप जिनमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट होते थे. तो this needs to be, now you can imagine that this needs to be done for every element in your model. So if there are 100,000 elements, we have to do that integration for 100,000 elements, and that becomes computationally very expensive. ठीक, तो isoparametric elements करते क्या हैं? We, for every element we develop a standard element, and for example if this is an actual element in your FEA model, for this FEA finite element we develop a standard finite element which is a perfect square
It has the same number of nodes, but इसकी dimensions different है, इसकी dimensions different है. We can have something like this here as well. तो एक triangular element है, again हमने 6 noded triangular element लिया है. We can have a 3 noded element like we talked about, but I'm just trying to show the element जिनमें integration की need होगी. So this is mapped onto a simple right angle triangle. We have a 3 noded bar element. It could be a beam or something like that. The 3 nodes are spaced unequally. We convert it to a standard element जिसमें equal distribution हुई है सारे nodes की. तो this is what we are saying. तो अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि if we can define some sort of a mapping here जो कि इस एलिमेंट को इस मैपिंग से रिलेट कर सके, यानी अगर मैं बोलूं कि इस एलिमेंट में डायमेंशन x equals to -1 and y equals to 1, although इसके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफरेंट लेते हैं, we'll talk about this. If I get this point should correspond to some point here as well. And if we are able to define this mapping, we can relate any differential in this actual domain to a differential in this domain. तो हमें जहाँ पे partial u by partial x लेना होता है, we could define that instead of defining it here, we can define it here. तो हम लोग अपने coordinates को transform कर देंगे into a different coordinate system, into a different shaped element. और उससे हमें फायदा ये होगा कि for this standard shape, we already would know कि integral क्या निकलता है. So we would have a result of this. So we'll convert this integral into a summation using some sort of numerical scheme. Or so that summation will be valid for all elements. हमारा काम जो बच जाएगा, that work would be to actually take every element, find its mapping to this standard element. तो हमारे अगर हमारे सिस्टम के अंदर सारे 9 noded quad elements हैं, 9 noded हमारे पास let's say quadrilateral elements हैं, then all of them will have a different mapping to this standard element, पर सबकी integration same तरीके से होगी. And that's what we want to see कि ये कैसे करते हैं. So इस पूरी चीज में जो सबसे पहला स्टेप और सबसे important स्टेप होता है, that is to actually define the mapping of the general element onto the normalized geometry. तो ये हमारी जो standard geometry है उसको हमने अपनी actual geometry से relate करना है. There should be a minor correction here. Normally हम लोगों को एक distinction, ये मैं मिस कर दिया, ठीक है, then it's fine. हम लोग नॉर्मली हम अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे होते हैं, ठीक है. तो हमारा दिस कुड बी माय 1 1, दिस कुड बी माय 3 1, लेट्स कॉल दिस 3 not 4 2, and everything will have something. So this is probably 5, okay, 2 5. I'm just putting some random numbers here. Each of these will have some corresponding S and T coordinate. तो S और T यहाँ पे देखें, S curve बना हुआ है. The point is कि this S and T is mapped onto a normal S and T coordinate system here. So we have two coordinate systems. One is an S and T, and the next is X and Y. So your element will have coordinates and differentials and every detail in both of these coordinate systems. और अगर हम अपनी मैपिंग डिफाइन कर दें अपने XY कोऑर्डिनेट की in terms of S and T, और इनवर्स मैपिंग भी डिफाइन हो सकती है of S and T in terms of X and Y, then our job would be simplified. Then we would actually be able to proceed forward. And so the job now is we need to find what sort of mapping can exist from between these two domains. And one idea is कि हम जो शेप फंक्शंस हम यूज करते हुए आ रहे हैं उसी तरह के शेप फंक्शंस को हम यूज करें टू डिफाइन दिस मैपिंग, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग लाइक दिस. तो हम लोग ये काम तो कर रहे हैं कि हम बोलते हैं कि अगर मेरा ये एलिमेंट है तो हर एलिमेंट के ऊपर मेरे पास कोई ना कोई 2 3 4 5, तो दिस वुड बी 5 u5 v5 and 6. समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो हमारे पास इस तरह के हर नोड के
डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं तो वी आर एबल टू डिफाइन एनी डिस्प्लेसमेंट और इन टर्म्स ऑफ लेट्स से वेक्टर्स, किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ आई कैन डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ शेप फंक्शंस एंड व्हिच आर मल्टीप्लाइड by the displacements of the nodes. तो u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 इस तरह करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं and we can do this. तो now we can, since हर पॉइंट जो यहाँ पे होगा उसका कोई ना कोई u v होगा, सिमिलरली हर पॉइंट जो है उसका कोई ना कोई SOT कोऑर्डिनेट भी है, तो we can use a very a similar sort of approach to define तो x1 y1 x2 y2 और इस तरह का मैट्रिक्स बना दो, तो वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एनी पॉइंट यूजिंग शेप फंक्शंस. ठीक है, तो द आइडिया इज कि हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं मैपिंग को यूजिंग शेप फंक्शंस एंड दिस इज व्हाट वी वांट. तो अब हमारी जो मैपिंग होगी तो वी वांट टू फाइंड आउट, इनफैक्ट हम जो काम करते हैं विच इज द इजियर थिंग टू डू इज दैट वी मैप फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस डोमेन. तो हम लोग अपने x और y को अप्रोक्सीमेट करेंगे as a function of s and t. ठीक है, SOT के फॉर्म में अप्रोक्सीमेट करेंगे एंड दैट इज शोन हियर. तो आपके सारे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम किसी भी पॉइंट का x और y को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं. ठीक, दिस शेप फंक्शंस डू नॉट नीड टू बी द सेम एज द शेप फंक्शंस ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. तो हम जो n1 n2 डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे होते हैं उनसे सेम होना जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली वी टेक देम सेम and that is why these are known as isoparametric, that there are two parameterization going on in your element. One is for the coordinates, one is for the displacement, both are same. So we are saying that it's iso means same and parametric, so there this is same parametric thing going on for displacement as well as coordinates. So that's why these are called isoparametric element. So we are using the same shape functions for displacement as well as coordinates, and that makes our life a lot easier. ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है. जब ये वाली चीज हो गई देन वी कैन कैरी आउट आवर प्रोसीजर्स जो कि हम नॉर्मली कर रहे होते हैं के मैट्रिक्स निकालने के लिए, और जहाँ पे भी हमें पार्शियल u बाय पार्शियल x या पार्शियल u बाय पार्शियल y कुछ भी चाहिए होगा तो वी विल अप्लाई द चेन रूल टू कन्वर्ट दैट इन SNT. तो हम लोग अभी करते ही हैं कि लेट्स जस्ट लुक एट अ सिंपल बार एलिमेंट. या बार एलिमेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस. तो but we'll see how this would be derived using isoparametric formulations. और उसके लिए the first thing that is done is कि हम अपनी mapping define करते हैं. तो we define x as a function of s and s as a function of x. This one is not normally done. This is not easy to do. ये simple elements के लिए तो हो जाती है inverse mapping define. Normally हमें सिर्फ x को function of s define करना होता है. This is what is needed. और इनवर्स मैपिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. तो व्हाट वी डू इज we can just use the chain rule to get so for example if I need du by dx, then this would be du by ds times ds by dx. But if I don't know this, then I can estimate this thing using the inverse mapping. तो हम लोग इनवर्स मैपिंग निकालने की एक अप्रोच चूज कर सकते हैं which will come later on. तो हम लोग ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा होता है, दिस सॉर्ट ऑफ मैट्रिसेस आर नोन एज जैकोबियन मैट्रिसेस, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ x नहीं होगा, इसमें x भी होगा, y भी होगा. दिस विल बी अ होल स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब एक दफा निकल जाता है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स भी कैलकुलेट हो सकता है. तो दैट इज द अप्रोच दैट वी यूज. तो अभी ऑब्जेक्टिव जो है वो इस जनरल स्कीम को समझना है ताकि हमें इम्प्लीमेंटेशन की चीज समझ में आ जाए. बिकॉज देयर विल बी अ फ्यू पॉइंट्स दैट विल कम अप जो कि FEA के सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं रिजल्ट्स की फॉर्म में. एंड इफ यू डोंट नो दिस वी वोंट अंडरस्टैंड कि वो रिजल्ट्स क्या चीज शो कर रहे हैं. तो अभी ये क्या काम कर रहे हैं, देयर सेइंग कि जो हमारा अगर हम इसको थोड़ा सा मैपिंग को एक दफा देख लें, द मैपिंग इज कि हमारे पास जो मैथमेटिकल डोमेन है इसको हम बाय यूनिट डोमेन भी कुछ लोग कह रहे होते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज बाय यूनिट डोमेन बिकॉज द डायमेंशन ऑफ दिस थिंग इज बेसिकली 2. ठीक है, तो -1 से लेके +1 तक जा रहा है. और ये दिस इज द थिंग दैट वी डू. अगर हमारे पास स्क्वायर भी होगा तो हम स्क्वायर को भी 0 0 पे सेंटर स्क्वायर का रखेंगे और हमारे चारों कॉर्नर्स जो है वो 1 1 1 1 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर होंगे.
अब मुझे अगर if I get from s0 to s minus 1, this means I'm corresponding to x equals to 1. And if I go to s plus 1, I'm corresponding to x equals to 2. So what we do is we assume a point here, which I'm calling xc, which is just x1 plus x2 divided by 2, the average of the x1 and x2. And जितना मैं आगे जा रहा हूं इससे, ठीक है, the amount I am going forward here, it's the same amount I have to go here as well. ठीक है, तो s equals to 1 corresponds to x equals to xc plus l by 2. ठीक है ना, and s equals to minus 1 corresponds to x equals to xc minus l by 2. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज xc से अगर मैं l by 2 आगे जाऊंगा तो मैं x2 पे पहुंच जाऊंगा, l by 2 पीछे जाऊंगा तो मैं x1 पे पहुंच जाऊंगा. अगर मुझे 0.5 आगे जाना है तो आई वुड जस्ट मल्टीप्लाई 0.5 here, and if 0.5 पीछे जाना है आई वुड मल्टीप्लाई 0.5 here. तो जनरल अप्रोच इज कि हम xc plus l by 2 s अज्यूम कर लेते हैं अपने x फंक्शन को, तो हम इसमें कोई भी s की वैल्यू डालेंगे, वी विल गेट अवर कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट. ठीक है, द इनवर्स मैपिंग कैन बी डिफाइंड बट इट्स नॉट नीडेड. मैंने की भी है, रखी भी है, लेकिन बट वी डोंट नीड दिस, वी विल नॉट यूज दिस थिंग. अब व्हाट वी कैन डू देन, अब हम क्या कर सकते हैं. xc जो हमारे पास है, xc is actually defined as x1 plus x2 divided by 2, so we can open this up and from there we can consider our boundary conditions जो हमारी at s equals to plus 1 पे x1 है और x equals to minus 1 के ऊपर x1 है. ठीक है, minus 1 के ऊपर x1 है और 1 के ऊपर x2 है. ठीक है, तो if we just plug in those conditions जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं, हम लोग यही काम करते थे ना, हम x equals to a naught plus a1, sorry u की लेते थे हम, u equals to a naught plus a1x, and then we say at a our x equals to 0 it is u1 and x equals to l it is u2, and then we found out a naught and a1. So this is the same thing that we need to do here, similar sort of thing going on. तो हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके वी कैन डिटरमिन अ फॉर्म लाइक दिस. ठीक, जिसके अंदर ये जो चीजें बन रही है, दीज आर नाउ योर शेप फंक्शंस. ठीक है, 1 minus l and 1 plus x. ठीक है, much more simplified than what we had in our normal domain. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको तेज जाऊंगा बिकॉज द आइडिया इज नॉट टू एक्चुअली रीडिराइव द एंटायर थिंग. आई हैव एवरीथिंग, हम तो देखते हुए चलेंगे, बट हमें इस चीज को मेनली समझना है, इस अप्रोच को एक दफा, एंड देन वील गेट टू अवर कॉम्सोल पार्ट. तो अगर हमारे पास ये शेप फंक्शन है तो the same shape function is also applicable to the displacement. ठीक है, हमने कहा था जो शेप फंक्शन हम x के लिए यूज कर रहे हैं वही शेप फंक्शन हम u के लिए भी यूज करेंगे. तो बस हमारे पास ये वेक्टर चेंज हो गया, x1 x2 से u1 u2 हो गया. ठीक है, and so the displacements are changing from u1 and u2 linearly because our shape functions are linear. ये सेम चीज है जो हम पहले करते हुए हैं. जब हम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद हम स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, which is epsilon x du by dx. But u is now defined not in terms of x, u is defined in terms of s. तो हम शेप फंक्शन जो है s का फंक्शन बन गया. ठीक है, तो अब s का अगर ये फंक्शंस हैं तो our differentiation can be performed in terms of s. So what we do is we say कि du by dx is equals to du by ds and ds by du, and this can be written as dx by ds in the denominator जो हमारी isoparametric मैपिंग होती है, इन्वर्सिबल होती है डायरेक्टली. तो हमारे पास and this thing you can check. ठीक है, आपके पास यहाँ जो दो शेप फंक्शन मैंने दिए हैं, आप इसे dx by ds और ds by dx निकालें, you would find that they turn out to be inverse of each other. The job now is to just define these two differentials and plug everything in. तो हम जब differentials अपने निकालते हैं दोनों, which is defined the same way, तो अगर हम for example dx by ds का इंटीग्रल चेक करें तो dx by ds का जो इंटीग्रल होगा, this is a constant, it will go away, this is just, this will be 1, so we'll have l by 2. ठीक है,
और अगर हम सेम काम इधर से करके देखेंगे, यू वुड फाइंड दैट वी गेट 2/L if you try the same thing here as well. तो L/2 इधर से जो निकल के आएगा, दिस थिंग इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर, और हमारे पास du/ds जो आया है, this is coming in the numerator, so we can rearrange everything and we get an epsilon which is actually the same result that we got before. Same result आएगा, ठीक. Then we can define our stress strain relationship the same way and our K matrix the same way using the principle of minimum potential energy. यहाँ पे आके चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है. यहाँ पे आके चीज ये चेंज होती है कि now our integration needs to be performed in the mathematical domain, the जो हमारा बाइयूनिट डोमेन है उसके अंदर में इंटीग्रेशन करनी है. अभी तो हमारे पास b कांस्टेंट है, तो we don't need to integrate it, but in reality the integration is needed. ठीक है, तो जो हमें इंटीग्रेशन करनी होगी, दैट इंटीग्रेशन नीड्स, तो हमारी अपनी जो हमें इंटीग्रल के जो पैरामीटर है उसको चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम x टू s. ठीक, सिंस वी ऑलरेडी नो dx, सही है, we can convert this thing into something like this. ठीक है, तो this thing is known, and this thing is this known as the Jacobian. So this is known as Jacobian. We'll talk about this in a bit as well. ठीक है, इसको Jacobian कहते हैं. And a two-dimensional Jacobian would look like this. It will be a matrix of all the possible differentials. तो अगर मेरे पास x y चल रहा है और वो s t के ऊपर मैप्ड है instead of just s, तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू s, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू s, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, and y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t. तो this is a 2D example of a Jacobian matrix. सही. So this is basically what we need. तो अभी हमारे पास Jacobian जो बन रहा है, it's just dx/ds and it's L/2. ठीक, तो this is j and j की वैल्यू में पता है L/2 है, तो we can plug L/2 here, and now our limit changes from 0 to L to -1 to 1. अब ये जो इंटीग्रल होगा ना, कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पे गिवन हो, इस फंक्शन को इन लिमिट्स के अंदर सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स आर एक्चुअली प्रीटी वेल डिफाइंड. ठीक है, एंड वी कैन डू दैट. तो अभी हम अगर अपने पास अपने के मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो हम dx को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ ds, तो वी एंड अप विद समथिंग लाइक दिस. तो हमारे पास यहाँ पे j आया था, j हमने यहाँ पे लिख दिया, तो दिस इज अवर j. एवरीथिंग एल्स इज सेम, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो गई हैं हमारे पास. और यहाँ पे वो पॉइंट आता है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे. तो जो टेक्निक FEA सॉफ्टवेयर के अंदर यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द गॉस क्वाड्रेचर रूल है. ठीक है, तो गॉस क्वाड्रेचर रूल जो है वो वन डायमेंशन के लिए क्या होता है, वैसे तो सब डायमेंशंस के लिए इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, बट व्हाट वी सिंपली डू, अगर मेरे पास किसी भी फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम -1 to 1, इट वुड सिंपली बी कन्वर्टेड इनटू अ समेशन. और समेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम प्री डिफाइंड पॉइंट्स के ऊपर, कुछ प्री डिफाइंड पॉइंट्स जिनको हम इंटीग्रेशन पॉइंट्स कह रहे होते हैं, उनके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. कुछ प्री डिटरमिन्ड रेट्स हैं, उनसे उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी टेक द सम. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इंटीग्रल, वी आर नाउ जस्ट इवेल्युएटिंग द फंक्शन अ फ्यू टाइम्स. ठीक है, तो अगर मेरे पास एक टू डायमेंशनल एलिमेंट है लेट्स से, तो उसके अंदर, and this is your s and this is your t, there's some points here in the middle, these are known as integration point. तो मुझे अपने इस पूरे जो b ट्रांसपोज db है, इस पूरी चीज को इन 4 पॉइंट्स के ऊपर इवेल्युएट करना होगा, उनको कुछ वेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा. दिस विल जस्ट बी सम कांस्टेंट्स, फंक्शन नहीं होंगे, सॉरी कांस्टेंट्स होंगे, एंड देन वी ऐड ऑल ऑफ इट, तो वी गेट अवर इंटीग्रल. तो हमें कोई इंटीग्रेशन एक्चुअली परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे पास यहाँ पे हमारे ये जो है फंक्शन ऑफ एस और टी क्यों ना हो. अगर मेरे पास इसमें लीनियर फंक्शन ऑफ एस और टी आ रहा है और मल्टीप्लाई होकर वो क्वाड्रेटिक बन रहा है, हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एस और टी की वैल्यू होगी. तो दिस विल बी प्रॉब्ली √1/2, √1/2, दिस वुड बी -√1/2,
and minus under root 1 by 2, and similarly all of these values are defined. तो हम SOT की जगह values plug in करेंगे and we'll just solve this. इससे फायदा में क्या होता है? इससे फायदा में ये होता है कि we are able to quickly integrate things और हमें हर एलिमेंट को अलग अलग ट्रीट नहीं करना पड़ता. Multiplying matrices is fast. Integration is more difficult because integration को आपको, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी लिमिट्स के अंदर, तो आपको हर एलिमेंट के ऊपर डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी. तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल, तो उसमें आपको पूरी एक सीरीज सॉल्व करनी पड़ेगी. द गॉस क्वाड्रेचर जो अप्रोच है, इसका फायदा ये है कि वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. अगर हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स देने पड़ते हैं एंड वी कैन जस्ट क्विकली गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट. ठीक है. अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर 2m-1 का, तो अगर मेरे पास लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इफ दिस इज बाई क्वाड्रेटिक अगर है मेरे पास, ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये 4 हो गया. तो दिस 4 से अगर मैं 2m-1 को 4 के इक्वल रखूंगा, तो आई विल गेट 5 divided by 2 which is 2.5. So I will only need 3 points in order to solve a polynomial of order 4. ठीक है. तो अगर मेरे पास ये चीज क्वाड्रेटिक होगी, तो इफ लेट्स से कि मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो दिस 2m-1 would be 2. तो m would turn out to be 3 by 2 and which would mean कि मुझे 2 points चाहिए in order to actually solve this thing. ठीक है. तो मेरे पास अगर यही शेप फंक्शन बन रहा है, लेट्स से कि मेरे पास एक सिंपल सा मेरे पास बार एलिमेंट है जिसकी डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्वाड्रेटिक अज्यूम कर लिया. तो नाउ दिस इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज x1 x2 x3 एंड वी हैव u1 u2 u3 है. तो जब मैं b ट्रांसपोज db करूंगा, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, तो du by dx would turn out to be linear. And when you multiply two linear terms together, you get a quadratic term. ठीक है ना. तो आपको अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए जस्ट नीड 2 पॉइंट्स. तो हम अपनी पूरी बार एलिमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे विच आर कॉल्ड इंटीग्रेशन पॉइंट्स, और ये प्री डिफाइंड होते हैं हर शेप के लिए. तो फॉर एग्जांपल फॉर अ 3 नोडेड बार एलिमेंट देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द गॉस क्वाड्रेचर इंटीग्रेशन पॉइंट्स और वेटिंग फंक्शन के टेबल्स आपको मिल जाएंगे. जस्ट नीड टू पिक the weights and the point locations within your domain. अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि we have already set our element size. तो आपको exactly, क्योंकि by unit domain के अंदर किस लोकेशन को पिक करना है, इट्स फिक्स्ड. प्लस माइनस से -1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो यू कैन डायरेक्टली गेट अ वैल्यू ऑफ एस एन टी एंड यू कैन प्लग इट इन एंड यू कैन गेट योर इंटीग्रल रिजल्ट डायरेक्टली. तो जो हम एक पूरी ये कन्वर्जन करते हुए आ रहे हैं, एंड दैट कन्वर्जन विल एक्चुअली गेट मोर डिफिकल्ट व्हेन यू गो टू 2 and 3 डायमेंशंस, बट उसका जो कंप्यूटेशनल बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होता है. सो एक सिर्फ 2D वाले केस को क्विकली अगर हम सिर्फ इसकी समरी देखें कि कैसे करेंगे, तो व्हाट दैट वुड Okay, so what we know so far is कि हमें अगर 2D एलिमेंट में किसी भी चीज को सॉल्व करना होता है, तो what are we saying कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर है which is a curved structure, और अगर उसको मैं फाइनाइट एलिमेंट से अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, तो लेट्स से देयर आर 2 elements here, so we are talking about just one of these elements. We're just talking about one of these elements, and हम लोग क्या करते हैं, we define our displacement function as a function of nodal displacements. We define our strain displacement relationship, we define our stress strain relationship, then we can find our element stiffness matrix. Just a minute please. Right, so
हम अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्रिंसिपल से के निकाल सकते हैं और फोर्स फैक्टर भी निकाल सकते हैं. वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस फॉर द कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगल एंड फॉर द ट्रस एलिमेंट, और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं एक दफा. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज के इन आइसोमेट्रिक फॉर्मुलेशन हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स को फंक्शन बनाना पड़ेगा हमारे एस एंड टी कोऑर्डिनेट्स का. ठीक है, और वो फंक्शन बनेगा इन टर्म्स ऑफ शेप फंक्शन. तो अगर हमारे पास, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, दिस वुड बी n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 plus n4 x4 and y1, and this y would be n1 y1 plus n2 y2 plus n3 y3 plus n4 y4. सही. Inverse mapping is possible, but it is additional steps and we don't really need it. We'll see why we don't need it. So we don't define s as a function of x and y. ठीक है, we just define x as a function of s and t. हमारे पास जो शेप फंक्शंस हैं वो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, और हर एलिमेंट के लिए these शेप फंक्शंस आर प्री डिफाइंड नाउ. व्हाई? बिकॉज हमें, हमारे पास जो शेप्स हैं वो प्री डिफाइंड होंगी. ट्राइंगल एलिमेंट अगर होता है, 3 नोडेड ट्राइंगल एलिमेंट, उसकी अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से होती है. ठीक है, तो द शेप फंक्शन फॉर दिस एलिमेंट इज डिफाइंड, कि इसको एसओटी की फॉर्म में कैसे डिफाइन करना है. अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका शेप फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है कि n1 n2 n3 n4 क्या होंगे. तो ऑल ऑफ दीज आर प्री डिफाइंड शेप फंक्शंस. निकाल भी सकते हैं, बुक के अंदर अप्रोच भी दी हुई है. आई जस्ट शो यू कि कैसे निकाले जाएंगे. अप्रोच वही होगी कि आप नोडल वैल्यूज प्लग इन करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स बचे होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे. तो अगर मुझे n पता है as a function of s and t and I need to determine partial n by partial x, then I need to apply the chain rule. तो ये चीज यहाँ पे शो हुई है कि मुझे किसी भी शेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है with respect to a parameter which is not defined, we need to apply the chain rule. अब मसला ये है कि I can't use this thing directly. I can't do this कि partial n by partial x is equals to partial n by partial s dot partial s by partial x. क्यों? क्योंकि मुझे s नहीं पता as a function of x and y. I don't know this. ठीक है, मुझे ये चीज नहीं पता. तो अगर मुझे ये चीज नहीं पता तो मैं ये नहीं निकाल सकता, because this thing is missing. है ना? तो हम क्या करते हैं, हम partial n by partial s को लिख लेते हैं. तो we say कि अगर मुझे partial n by partial s चाहिए हो, तो that would be partial n by partial x by partial s. This thing is known now क्योंकि हम x और y as a function of s and t define कर चुके हैं. This is the first thing we do. x और y हम define करते हैं सबसे पहले. तो essentially हम s और t के derivatives देखते हैं which are actually directly available. हमें पता है ये वाली चीज. We know s and t as a function के function के तौर पे हमें n पता है, तो we can calculate this left hand side. What is missing is this. This is missing. But उसके बावजूद हम इसको लिखते उल्टा ही हैं, बिकॉज वी नो दीज थिंग्स. हमें ये चीज भी पता है. तो ऑन द राइट हैंड साइड वी नो दीज डिफरेंशियल्स, दीज आर मिसिंग, एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो नोन. तो अगर हम इस पूरी चीज को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वी एंड अप विद समथिंग लाइक दिस. तो हमारे पास ये नोन है, ये मिसिंग है, and all of these differentials are also known. तो जो बीच वाला मैट्रिक्स है, this is known as the Jacobian matrix, which defines the mapping of S and T onto X and Y. सही है, दो हमारे domains हैं, उनके बीच की मैपिंग डिफाइन कर रहा है. तो if I need to just calculate this side, I need to take this Jacobian here, उसका inverse ले लूंगा मैं. And since this is a matrix, its inverse is possible अगर इसका determinant में जीरो नहीं है तो. ठीक है ना, तो ये ली जा सकती है. So this is essentially what we do. That is why we don't actually need to define s as a function of x and y. हम लोग s और t को function of s and y, we don't need to define something like this. Why? Because हम लोग सिर्फ simple x और y वाली जो चीज है as a function of s and t, इसकी help से we can just define this and we can take the inverse. ठीक है, तो हम लोग x और y के जब इंटीग्रल डिफरेंशियल्स निकाल लेंगे, वी कैन टेक द इनवर्स ऑफ द जैकोबियन, मल्टीप्लाई विद द नोन डिफरेंशियल्स, एंड वी एंड अप विद आवर
required things basically. ठीक है, तो अब हमें जेकोबियन निकालना है. जेकोबियन निकालने के लिए वी नीड टू सॉल्व फॉर, लेट्स से कि मुझे पार्शियल x बाय पार्शियल s सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सॉरी, partial x by partial s के लिए तो we'll have something like this, where our x is something like this: n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 plus n4 x4, and this turns out to be now partial n1 by partial s dot x1 plus partial n2 by partial s dot x2, and it right. तो हम लोग इस जो हमारे पास सीरीज जो सम बन रहा है यहाँ पे, इसको सिंपली एक समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एस जो है दैट वुड बी partial ni by partial s times xi का summation over I, where I goes over all the nodes basically. ठीक है, and same thing can be done for the differential with respect to t and for the differentials of y with respect to s as well as t. ठीक है, इस काम हम कर सकते हैं. इस पूरी चीज को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स. ठीक है, तो पूरी चीज जो है जैकोबियन मैट्रिक्स के फॉर्म में बन जाएगी. द ओनली थिंग वी नीड टू इंश्योर इज के डिटर्मिनेंट जो है शुड बी ग्रेटर देन 0 टू इंश्योर अ वन ऑन वन मैपिंग. ठीक, और फॉर दिस एलिमेंट्स दैट वी फॉर्मुलेट, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हम बनाते हैं, उनमें आपका जो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि हम इनवर्स मैपिंग डिफाइन नहीं कर सकते. बट इफ वी फॉर द एलिमेंट्स दैट वी विल यूज, जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स बनते हैं, उनमें डिटर्मिनेंट 0. Yeah, my internet actually is causing some trouble, तो hopefully अभी नहीं होगा. अगर होता है तो then I'll switch to my mobile internet. Right, तो एक जो चीज इसमें रह गई है वो ये रह गई कि अब मुझे अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है तो दिस फंक्शन इज प्रॉब्ली अ बॉडी फोर्स और कैन बी माय स्टिफनेस, बी डी बी जो हम निकाल रहे होते हैं वो चीज है. For plane, this dv becomes thickness times dA, and now the job is to convert this dA from dx dy to ds and dt, and this is dependent on this result, जिसका हम प्रूफ नहीं दे रहे. ठीक है, बट इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग वेरी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं इन टर्म्स ऑफ एस एंड टी और एक और एलिमेंट ले लूं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो इफ आई टेक अनदर एलिमेंट लाइक दिस और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई इस तरीके से है, देन आई, और इसकी फॉर एग्जांपल लेंथ डी एक्स और डी वाई है और इसकी लेंथ ds और dt है. I need to define dx in terms of ds and dt and dy as well. dy भी हमें ds और dt की फॉर्म में डिफाइन करना पड़ता है, which can be done in a way which is very similar to what we did rotation matrices वगैरह बनाने के लिए ना, उसी तरीके से होता है. And once we do that, then we can multiply the two things together. We end up with dx dy as a function of ds and dt, and what comes here is actually the determinant of the Jacobian matrix. ठीक, so this proof is not, we are not going into it. मिल जाता है इंटरनेट पे, I just read it yesterday as well, but this actually helps us, and this is generally true. तो चाहे 2D हो या 3D हो, something like this will be valid for us. तो 3D में भी इसकी कोई यानी कोई इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होगी. तो if we can convert our integral from dx dy to ds and dt, our limits change from x and y to -1 and +1 for both s as well as t. अब हमारे पास सेम चीज हो गई. अब हमारे पास एक डबल इंटीग्रल आ गया of a function in terms of s and t, and this, the advantage of this now is that this thing is the Gauss quadrature rule, और गॉस क्वाड्रेचर रूल के अंदर
the integral can be defined in terms of a simple summation basically, ठीक है, हम sum की form में define कर सकते हैं. So that's the point. इस पूरी चीज को हमने यहाँ पे एक जो है वो numbers की form में भी convert किया हुआ है just to get an idea. There is nothing here which is different from what we just talked about. हमने दिखाया कि हमारे पास एक element है जिसकी coordinates defined है, यानी कि इसकी shape is not a standard square shape. तो 3 1 6 1 6 6 3 6 हमारे पास है. It's still a rectangle 90 degrees पे. It does not even need to be a rectangle, can be any other shape. और इसको हम मैप कर रहे हैं अपने ST डोमेन में आइसोपैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर. तो इसमें हमारी सारी डायमेंशंस जो है वो +1 और -1 की फॉर्म में चल रही हैं. ठीक है. हमारे शेप फंक्शंस जो होंगे इस केस के दे कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. और लेट मी एट दिस पॉइंट गो टू द बुक एंड ये पूरी चीज बुक के अंदर डिफाइंड है, ये वाली पूरी डेरिवेशन जो है ना. चैप्टर नंबर 10 है बुक के अंदर विच इज द आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मुलेशन. इसके अंदर हमारे पास सिंपल जो है बार एलिमेंट की भी डिस्कशन पूरी हुई हुई है. So this is the entire discussion on the isobarimetric formulation of the simple bar element, and then we talk about the isobarimetric formulation of a plane quadrilateral element as well. तो simple four noded element की बात हो रही है. ठीक हो गया. तो हम कैसे निकालते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन. हमने शेप फंक्शंस अज्यूम करने हैं अपने केस के. तो इट इज एक्स एंड वाई को हमने ले लिया a1 + a2s + a3t + a4st, और y को ले लिया a5 + a6s + a7t + a8st, and then we apply our nodal coordinates to this. So x1 will be when s equals to let's say 1 and t equals to 1, and x2 will be when s equals to 1 and t equals to -1. इस तरह करके आप s और t की वैल्यूज x1 x2 x3 x4 के लिए डालेंगे. और you will have 8 unknowns, you will have 8 equation को solve करें and you can find out your AIs. और AI को जब आप प्लग इन करते हैं, बुक में भी उस चीज को उन्होंने शो नहीं किया because it becomes quite lengthy. ठीक है. तो they just have given us the final result and we are going to take it from them. ठीक है. तो हम लोग जो हमारे पास n1 n2 n3 n4 बन के आ रहे हैं, these are these shape functions right here. सही. तो shape functions यहाँ से आ गए हमारे पास. Let us get back to what we were doing. And what do we do next? हमें इसके बाद कहना होता है कि this is our displacement interpolation. Similar interpolation is applied for the coordinates as well. So this is the isometric mapping. X and Y is defined in terms of the same shape functions. अब the point is कि अभी तो हम जनरल बात कर रहे थे x1 x2 x3 x4 की. अब हमारे पास x1 से लेके x4 तक की वैल्यूज हैं, y1 से लेके y4 तक की वैल्यूज हैं. तो we can plug in these. तो यहाँ पे हमने x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 को plug in कर दिया. तो essentially what we end up with is a pretty simplified form of x and y. It's not that complicated. पहले लग रहा था कि summation है, बहुत complicated form बन रही होगी, but it turns out that it is not that complicated because ये सारे शेप ये सेम है, कॉमन आ जाएगा एंड वी कैन जस्ट गेट समथिंग आउट ऑफ दिस. ओके. तो उसके बाद हमें क्या करना होगा. उसके बाद हम जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं व्हिच इज x by s, y by s, x by t, y by t. x और y हमें डिफाइंड है तो वी कैन वेरी क्विकली कैलकुलेट दीज. ठीक है. सिंस इट्स ऑल लीनियर तो हमारे पास 3/2 और 5/2 आ जाएगा. x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ s. क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल था. अगर हमारे पास किसी भी सॉर्ट ऑफ पैरेललोग्राम या फिर थोड़ा सा जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास s और t दोनों चीजें आ रही होती हैं. दैट वुड हैव बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर अस, बट राइट नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल केस. तो जैकोबियन आ गया. जैकोबियन इज अ सिंपल 2/2 मैट्रिक्स. इसका इनवर्स जैकोबियन भी निकल सकता है. नॉर्मल इनवर्स से निकाल लीजिए. उसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकता है, डिटरमिनेंट भी निकाल लें. once that is done, now we need to calculate b. जो अगर मुझे b निकालना है, मुझे पता है कि मैं what I actually need is I need my differentials in x and y के फॉर्म में because I need to find my strains. और x और phi के जो मेरे पास x और y के मेरे पास जो partial derivatives हैं, they can be defined in terms of s and t, which we can plug in here. अब इनमें से अगेन मेरे पास मल्टीपल पार्ट्स इसके बनने, जैसे हम लोग पहले भी करते हुए आ रहे हैं.
कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट इट्स इजियर टू मल्टीप्लाई, सो एंड इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल। अगर मैं इनमें से किसी भी एक रो को निकालना चाह रहा हूँ तो द वे वी आर गोइंग टू डू दैट इज पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एन वाई पे पार्शियल एक्स निकालना है, जीरो पार्शियल एन वाई पे पार्शियल वाई निकालना है। एंड दिस एंटायर थिंग इज अवेलेबल इन द बुक, यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक दिस थिंग एज वेल। बुक के अंदर पूरी चीज हुई हुई है, तो इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट। आई जस्ट वांट टू शो यू द जनरल अप्रोच एंड आई वांट टू गेट टू दिस COMSOL थिंग, राइट। if I want to calculate this thing, मेरे पास inverse Jacobian available है, partial n1 by partial s, partial n1 by partial t available है. We just need to plug everything in. I can get my partial ny by partial x and partial ny by partial y. ठीक है, तो and we can just plug these in and we can get this here. अब हमें अगर K matrix निकालना होगा अपना, the K matrix is going to be अगेन हमें अपने इसको इंटीग्रल को कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम माय xy डोमेन टू माय st डोमेन। dv becomes thickness times dx dy, तो this becomes h times dx dy, this is my dA, ठीक है ना। और we have said कि this thing is equals to the determinant of the Jacobian times ds and dt, ठीक। Converting this gives me this particular integral, and इसमें हमारे पास क्या चीज आ रही है, हमारी लिमिट्स सारी SOT की चेंज हो गई, -1 to 1, 1 -1 to 1, ठीक। गॉस क्वाड्रेचर रूल जो होता है फॉर अ सिंपल, अगर हमारे पास इस तरह का 4 नोडेड एलिमेंट है तो उसके अंदर वी ओनली नीड टू सिलेक्ट 4 नोड्स लाइक दिस, जो हमारे पास इंटीग्रेशन पॉइंट्स हैं। S1 और S2 डिफाइंड है एस 0.5773, ठीक है, ये सारे 0.5773 की फॉर्म में डिफाइंड है। तो दिस पॉइंट इज प्लस 0.5773 कॉमा 0.5773, दोनों पॉजिटिव है, इधर दोनों नेगेटिव है, इधर y नेगेटिव एस t नेगेटिव है, s पॉजिटिव है, इधर s नेगेटिव है, t पॉजिटिव है। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, देयर आर 4 इंटीग्रेशन पॉइंट्स, तो आई नीड टू सम ओवर ऑल 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो एसेंशियली मेरे पास चारों सम हो रहे होंगे, और मेरे पास ये पूरा मैट्रिक्स 4 दफा कैलकुलेट होगा। दिस द एंटायर थिंग विल बी कैलकुलेटेड 4 टाइम्स, और इसके अंदर मैंने सिर्फ समेशन करनी है। वेट्स हमारे पास इस केस में सारे 1 है, तो आई जस्ट नीड टू इवैल्यूएट इट एट दिस 4 पॉइंट्स एंड जस्ट मल्टीप्लाई, ऐड देम ऑल टुगेदर एंड वी गेट आवर के मैट्रिक्स। हमें कोई इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। इन रियलिटी हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में it is possible कि in some cases we get constants here, but that is not always necessary. तो हमारे पास for example इस केस में हमारे पास S और T की values आ रही है, तो we have S and T here. तो what we will need to do is we will need to actually plug in the values of S and T in this and calculate the integrand at 4 different locations, और उनके बाद उसको sum कर देते, ठीक। I know I went through this entire thing very fast, and probably you'll need to go through this thing again सही से, and this thing is not that simple, काफी complicated चीज थी जो मैंने बहुत quickly की है, and the reason was कि we are short of time, अभी बहुत सारा काम हमें करना है, और we need to quickly move forward. But if you go through this chapter, you will find that there are examples here which you can use to understand this thing, ठीक है। ये पूरी चीज जो है हमारे पास explained है बुक में बहुत अच्छे तरीके से। So there are this example is there, ठीक। तो हमारे पास इन्होंने इसके अंदर ये सारे काम करके दिखाए हैं कि how we have to do this thing, and this Gauss quadrature approach and all of this is also explained. There is one more approach, the Newton-Cotes approach. This is more computationally intensive, इसको normally use नहीं किया जाता। The one that is used is Gaussian quadrature या Gauss quadrature approach जो हमारी होती है, इसको use करते हैं। there are Gauss quadrature के लिए they have discussed the entire approach, और उसके बाद उन्होंने इस एग्जांपल भी डिस्कस की है कि अगर मेरे पास 4 पॉइंट रूल क्या होता है, और मेरे पास अगर हायर डायमेंशन में चले जाएंगे उधर क्या करना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दैट इज शोन, ठीक है। काफी एग्जांपल्स की हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, देखें इसमें इस चीज को तेज करने का पर्पस जो था वो ये था कि वी आर नॉट
actually going to solve all of this by hand now. Okay, we are moving away from hand calculations. But when we get to let me just end this thing.